used to make decisions using data. It helps us to test an assumption about a population. Suppose we have to find the average height of students. So is the average height of students equal to 165 centimeter or not? So we will choose, or we will assume about our sample. What are types of hypothesis? First one is the null hypothesis and second is the alternate hypothesis. So null hypothesis we denote it with H naught, that is no effect, that is no difference between the observed value and actual value. Suppose average marks is equal to 60. And alternate hypothesis, which is opposite to null hypothesis, that is there is a difference or there is an effect in the observed value and calculated value. That is, for example, average marks are not equal to 60. So what are the steps in hypothesis testing? First, we will state the hypothesis, that is, it is null hypothesis and alternate hypothesis. Then we will choose our significance level. Significance level, that is the possibility for error is like alpha is equal to 0.05. That is the error we have chosen is just 5%. Then we will select our test statistics. Then we will find the probability value. Then we will make a decision on the results. Now steps of hypothesis testing are: hypothesis testing follow a systematic procedure. These steps help researchers take decision using data. Now first step is we have to state the hypothesis. H naught is the symbol for null hypothesis and H1 is the symbol for alternate hypothesis. And what is null hypothesis? Suppose there is no effect or no difference between observed and calculated value. Then opposite, that is alternate hypothesis, will be, we'll assume that there is an effect or there is a difference between observed value and calculated value. For example, suppose हमने choose किया that is null hypothesis average marks equal to 60 है, तो alternate क्या उससे opposite क्या choose करेंगे, that is average marks are not equal to 60. Then we will choose our significance level. See what is significance level? It denotes significance level with the symbol alpha. It is the probability of rejecting null hypothesis when it is true. So common values are mostly 0.05 or 0.01 level of significance लेते हैं. So alpha is equal to 0.05 means 5% risk of wrong decision. Same 0.01 means 1% risk of wrong decision. Will used widely in PhD research this level of significance. Rare samples में हम 10% तक ले सकते हैं, but mostly हम 1% or 5% तक लेते हैं. The next step is we have to select the test statistics. Now test statistics depends upon the type of data, sample size and population variance. Now different जो टेस्ट स्टैटिक्स हैं, Z टेस्ट, T टेस्ट, I स्क्वायर, F टेस्ट, ये भी पढ़ेंगे हम, आपके सिलेबस में है T टेस्ट, I स्क्वायर वगैरह. Now what is population variance? Population variance measures how data values are spread around the population mean. हमने पहले भी पढ़ा था कि स्टैंडर्ड डेविएशन हम फाइंड करते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन से वेरिएंस फाइंड करते हैं. तो वेरिएंस क्यों कैलकुलेट करते हैं? वहां से हमें क्या पता चलता है कि हमारा जो डेटा है वो मीन के अराउंड स्प्रेड है या किस टाइप से स्प्रेड हो रखा है. तो इट शोज द डिग्री ऑफ वेरिएबिलिटी इन द एंटायर पॉपुलेशन. Now, what is the meaning of population variance? It tells how much individual observations differ from mean. High variance means more spread in data, and lower variance means data close to the mean. Now, this is the formula of population variance: x minus mu whole square upon n. Now, sigma square, the left hand side symbol is known as sigma. So the sigma square is the population variance
x इज द इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन, जितनी भी वैल्यूज हमारे पास दे रखी हैं। म्यू इज द पॉपुलेशन मीन, जो भी होल पॉपुलेशन है उसका मीन कितना, एंड एन इज द टोटल पॉपुलेशन साइज, सैंपल साइज हमारा या पॉपुलेशन साइज जो है वो कितना है। नाउ स्टेप्स टू कैलकुलेट पॉपुलेशन वेरिएंस। फाइंड द फर्स्ट पॉपुलेशन मीन। मीन कैसे फाइंड करते हैं, हमने डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स पढ़े थे। सिंपल मीन कैसे, सम ऑफ टर्म्स अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स। देन वी विल सब्ट्रैक्ट मीन फ्रॉम ईच ऑब्जर्वेशन। सबसे पहले हमने क्या करना, वी विल फाइंड द पॉपुलेशन मीन, उसको म्यू से डिनोट कर दिया। देन वी विल सब्ट्रैक्ट मीन फ्रॉम ईच ऑब्जर्वेशन, जितनी भी हमारे पास वैल्यूज है सब इसमें से मीन को माइनस कर देंगे। देन वी विल फाइंड द स्क्वायर ऑफ डिफरेंस, तो माइनस करके जो वैल्यूज आई हैं उसका स्क्वायर कर देंगे। देन वी विल ऐड ऑल स्क्वायर डिफरेंसेस, दैट इज जो एक्स बार हमने जो मीन माइनस किया फिर उसका स्क्वायर किया, तो उस वाले पूरे कॉलम का सम फाइंड कर लेंगे। देन वी विल डिवाइड बाय द टोटल पॉपुलेशन, कितने उसमें काउंट्स है उससे डिवाइड कर देंगे, एंड वी विल गेट द पॉपुलेशन वेरिएंस। सपोज अ डेटा इज 4 टर्म्स आर देयर, 2 4 6 एंड 8, तो मीन कितना हो गया, सम ऑफ टर्म्स सभी को हमने ऐड कर दिया, 2 + 4 + 6 + 8 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स 4 है तो 4 से डिवाइड कर दिया, दिस इज इक्वल टू 5. Then we have subtracted this 5 from each value of given population data. तो जो हर एक वैल्यू है उसमें से 5 को माइनस कर दिया और फिर उसका स्क्वायर कर दिया, तो 2 - 5 होल स्क्वायर इक्वल टू 9 आ गया, 4 - 5 होल स्क्वायर इक्वल टू 1, सारी वैल्यूज को कैलकुलेट कर लिया। देन अब इन्हीं सारी वैल्यूज को हमने सम फाइंड कर लिया, 9 + 1 + 1 + 9 दैट इज सम इज इक्वल टू 20 आ गया। तो वेरिएंस कितना हुआ, नो दिस सम अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स हमारी पॉपुलेशन कितनी थी, 4 टर्म्स थी, तो 4 से हमने डिवाइड कर दिया, दिस इज इक्वल टू 5. व्हाट इज पॉपुलेशन वर्सेस सैंपल वेरिएंस? पॉपुलेशन वेरिएंस x माइनस म्यू होल स्क्वायर अपॉन n, सैंपल वेरिएंस समेशन x माइनस x बार अपॉन n माइनस 1 है, तो वेरिएंस ही है, ठीक है। फर्स्ट टर्म x की जगह x आ रहा है, ठीक है। पॉपुलेशन वेरिएंस को हमने सिग्मा स्क्वायर से डिनोट किया है, सैंपल वेरिएंस को एस स्क्वायर से डिनोट किया है। सैंपल क्या है, अ स्मॉल अ सबसेट ऑफ होल सेट। म्यू का हमने रिप्लेसमेंट कर दी x बार से, x बार इज द सैंपल मीन, कैपिटल N इज द नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, सैंपल वेरिएंस क्या है, तो डिवाइडेड बाय, अब स्मॉल n की बजाय हमने n-1 लिया है। एक्चुअल में यू कैन कैलकुलेट सिंपली, अगर न्यूमेरिकल सॉल्व करना है तो आप स्मॉल n यूज कर सकते हो, दैट इज द नंबर ऑफ टर्म्स। बट एक्चुअली जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, कोई प्रॉपर एक्सपेरिमेंट चलता है, तो साइंटिस्ट ने क्या डिसाइड किया, उन्होंने देखा जब भी उन्होंने पॉपुलेशन वेरिएंस और सैंपल वेरिएंस कैलकुलेट किया, सेम फॉर्मूला यूज किया, पॉपुलेशन वेरिएंस में कैपिटल N और सैंपल वेरिएंस में स्मॉल n, ठीक है। तो क्या था, थोड़ा रिजल्ट्स में डिफरेंस आ रहा था, तो फॉर्मूला को स्लाइड उनमें चेंज कर दिया, रिप्लेस कर क्या किया, डिनोमिनेटर में n को n-1 से रिप्लेस कर दिया, दैट इज नंबर ऑफ टर्म्स -1। अगर 4 टर्म्स है तो 3 से डिवाइड करना है, 3 टर्म्स है तो 2 से डिवाइड करना है, उससे क्या है, रिजल्ट जो थे ज्यादा एक्यूरेट आए, ठीक है। तो पहले तो जो फॉर्मूला ये सिंपल ही चलता था, x - x बार होल स्क्वायर और इसका समेशन डिवाइडेड बाय n, अब ये n-1 से रिप्लेस हो चुका है काफी टाइम से। What is the use of population variance in research? It is used when entire population data is available. It is common in quality control and census studies, and it helps in selecting appropriate statistical test. So, what is the conclusion? That is population variance measures total variability. कि data कितना vary कर रहा है. So it is a basic but important concept in statistics. It is the foundation for hypothesis testing and inference. Next step is calculate p-value, that is probability value. P-value shows the probability of obtaining results as extreme as observed. उसके बाद हमने जो भी टेस्ट लगाना है, टेस्ट लगा के हम अपनी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। अब टेस्ट कौन सा लगेगा ये हम नेक्स्ट
पढ़ेंगे, बट इट डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ योर सैंपल कि कौन सा टेस्ट आप उस पर यूज करोगे या उसमें क्या अवेलेबिलिटी है। बट रिजल्ट कैसे फाइंड करते हैं? सपोज हमारी पी वैल्यू है जो वो लेस देन और इक्वल टू अल्फा आती है, देन वी विल रिजेक्ट आवर null hypothesis. If our p value is greater than alpha, then we will accept our null hypothesis. So p value helps in objective decision making. तो जो भी हमारा रिजल्ट आता है, एक्चुअल में जितने भी टेस्ट होते हैं, टी टेस्ट, एफ टेस्ट, जैसे हमारे लॉग टेबल होते थे, तो इनके भी टेबल्स होते हैं। तो नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्या हो जाती है? जितना भी इसका सैंपल साइज है हमारा, सपोज 25 टर्म्स आर देयर इन अ सैंपल, तो नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्या होएगा? सैंपल साइज -1 n -1, तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम इज 24। तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के अकॉर्डिंग हमारी टेबल वैल्यूज फिक्स होती हैं। तो जो भी हमने सैंपल साइज लिया है, जितना भी हमारी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है, जो हमारा कैलकुलेशन के बाद रिजल्ट आया, तो एट द एंड वी विल कंपेयर विद द टेबल वैल्यू। तो टेबल वैल्यू से कंपेयर करेंगे, देन वी विल find the result whether our sample is accepted or rejected. Next step क्या है? We will make, वही decision make करना है हमने, we will compare p value with the significance level alpha. अब significance level क्या था? वही एरर के चांसेस कितने, 5% है या 1% है, तो आपने कौन सा लेवल पे चेक करना है, तो उसका भी डिफरेंट टेबल होएगा। तो उसके अकॉर्डिंग सपोज 5% पे चेक करना है, तो p वैल्यू लेस देन 0.05 है, तो we will reject our null hypothesis. If greater than, then fail to reject null hypothesis. Then conclusion should be stated clearly. वहां से हमें अपना सैंपल साइज पता चल जाता है कि ये सही है कि नहीं है। And the p value क्या है? p value is the probability of obtaining the observed result assuming the null hypothesis is true. Simple explanation अगर हम बोले, small p value, then result is unlikely, by chance, strong evidence against null hypothesis. H naught means null hypothesis. And large p value means the result is likely, by chance, and weak evidence against a null hypothesis. And significance level क्या है? It is the probability of rejecting a true null hypothesis. What does alpha equal to 0.05 mean? पहले मैंने आपको बता दिया, alpha equal to 0.05 means there is a 5% chance of rejecting null hypothesis even though it is true. This implies that 95% confidence in the result. The result पे कितना confidence है? 95% confidence है. It is the most commonly used level in research. तो mostly research में जब भी हम सैंपल साइज लेके करते हैं, तो 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस ही मेनली चलता है। तो why significance level is important? It controls our type 1 error. It errors भी दो टाइप के आ जाते हैं, टाइप 1, टाइप 2, ये भी बताऊंगी आपको। तो it sets a decision boundary. It ensures reliability and consistency in research result, and it must be fixed before data analysis. तो एनालिसिस से पहले हमें फिक्स करना होता है हम किस लेवल पे कर रहे हैं। Now suppose a p value is 0.03 and alpha is 0.05. So 0.03 क्या है? Less है 0.05 से. It means we will reject the null hypothesis and result is statistically significant. So hypothesis testing provides scientific decision making. Each step is important in PhD research, so proper interpretation improves research quality. Now next is what is sampling. Sampling का हमने वर्ड बार बार यूज किया है। तो sampling क्या है? It is a process of selecting a small group or small sample from a large group, or you can say the large population, to study and to draw conclusions about the whole population. एक बार क्या होता है, पॉपुलेशन साइज इतना बड़ा होता है कि उस पर स्टडी करना मुश्किल हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, उसमें से कुछ पोर्शन चूज कर लेते हैं, कुछ सबसेट चूज कर लेते हैं, सैंपल सेलेक्ट कर लेते हैं, उस पे हम अपना एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो जो उस पे रिजल्ट आते हैं
वो हम एज्यूम कर लेते हैं कि होल पॉपुलेशन के भी रिजल्ट जो है यही है। तो सैम्पलिंग क्या है? इट इज अ मेथड ऑफ चूजिंग अ पार्ट ऑफ पॉपुलेशन टू रिप्रेजेंट द एंटायर पॉपुलेशन। तो व्हाई सैम्पलिंग इज यूज्ड? It is used to studying the whole population, is time consuming and costly. Also, sampling saves our time, money, and efforts. It gives quick and reliable results when done properly. For example, a population is all students in a university. तो सारे स्टूडेंट्स पे हमने रिसर्च करनी है, तो अब सभी को हमने काउंट करना मुश्किल हो जाएगा, तो वी विल सेलेक्ट 100 स्टूडेंट्स। तो हमने क्या किया, 100 स्टूडेंट्स सेलेक्टेड फॉर अ सर्वे, उसमें से रैंडमली 100 स्टूडेंट चूज कर लिए। देन रिजल्ट फ्रॉम द 100 स्टूडेंट्स आर यूज्ड टू अंडरस्टैंड ऑल स्टूडेंट्स। सैम्पलिंग यूज कहाँ कहाँ करते हैं? यूज सैम्पलिंग इन सर्वेस, रिसर्च स्टडीज, मेडिकल एंड सोशल साइंस रिसर्च, क्वालिटी कंट्रोल, PhD and academic research. And what is sampling design? So sampling design is the method used to select samples from a population. तो अब सेलेक्ट कैसे करना है? सैम्पलिंग डिजाइन मीन्स हमने जो सैंपल सेलेक्ट करना है किस टाइप से करना है। तो गुड सैम्पलिंग डिजाइन गिव्स एक्यूरेट एंड अनबायस्ड रिजल्ट। ऑब्वियसली सैंपल ऐसा होना चाहिए जो हमारे रिजल्ट जो है सही आए। So for example, selecting students from a university for a survey. Sampling की types क्या है? First one is probability sampling. Second is non-probability sampling. So what is probability sampling? In probability sampling, every unit in the population has a known and equal chance of being selected. इन सभी का चांस है कि वो सेलेक्ट हो जाएं। तो सिलेक्शन इज रैंडम so that the results are more reliable. For example, if a class has 100 students and we randomly select 10 students using a lottery method, then each student has an equal chance of selection. 100 स्टूडेंट्स हैं तो रैंडमली 10 हमने चूज करने हैं, उसके लिए हमने लॉटरी मेथड यूज कर लिया, सभी के नाम पर्चियों पे लिख लिए, तो 10 पर्चियां उठानी है, तो चांस तो सभी क्या है कि वो सिलेक्ट हो जाए। सो ईच स्टूडेंट हैज an equal chance of selection. Second one is non-probability sampling. So in non-probability sampling, all population units do not have an equal chance of selection. It depends upon our convenience or researchers judgment. तो इसको हम randomly choose नहीं करते इसमें। Suppose if a researcher surveys only students sitting in the first 2 rows of a class, then selection is not random. Okay? पहले 2 rows से उसने स्टूडेंट ले लिए, तो it is not a random sampling. Next, probability sampling further 4 types किया जाती है। Simple random sampling, stratified sampling, systematic sampling and cluster sampling. What is simple random sampling? Suppose we are selecting student using lottery method. तो ये क्या हो गया? सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। रैंडमली हमने क्लास में से स्टूडेंट सेलेक्ट किए हैं, इसको लॉटरी मेथड भी बोल देते हैं। इट इज सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग में क्या करेंगे, हम क्लास को ग्रुप्स में डिवाइड कर देंगे। सपोज बॉयज एंड गर्ल्स में डिवाइड कर दिया, देन उसके बाद हमने 5 बॉयज ले लिए, 5 गर्ल्स ले लिए, तो इसको बोलते हैं स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। So we have divided students into male and female groups and selecting samples from each group. पहले 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया, फिर दोनों में से हमने अपने एक्सपेरिमेंट के हिसाब से डेटा चूज किया। नेक्स्ट है सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, कि हम एक ऑर्डर में सैम्पलिंग कर रहे हैं। सपोज वी आर सेलेक्टिंग एवरी 5th स्टूडेंट, रोल नंबर है जिसका भी 5 के टेबल में आता है वो बाहर आ जाओ। तो वी हैव सिलेक्टेड, एक सिस्टमैटिक सैंपल बना लिया। क्लस्टर सैम्पलिंग, वी आर सेलेक्टिंग
one college randomly and studying all students in it. यूनिवर्सिटी पे डाटा करना था हमने, बट हमने क्या किया, पूरी यूनिवर्सिटी के अलग अलग कॉलेजेस के स्टूडेंट लेने की बजाय हमने एक कॉलेज रैंडमली कोई चूज कर लिया, उसके सारे स्टूडेंट्स पे जो अपना एक्सपेरिमेंट किया, वहां से रिजल्ट आए तो वो अज्यूम कर लिया कि पूरी यूनिवर्सिटी के जो है सेम रिजल्ट है. दिस इज नोन एज क्लस्टर सैम्पलिंग. तो ये आपके पेपर के लिए भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है. So what are the advantages of probability sampling? It is less biased, more accurate result, suitable for hypothesis testing. It is preferred in PhD research. And non-probability sampling. Not all population members have a chance of selection. तो सभी को चांस नहीं मिलेगा कि वो सिलेक्ट हो जाएं. It depends on convenience. अब मैंने पंजाब में कोई जजमेंट करनी है, पंजाब के कोई सैंपल लेना है, तो मैंने क्या किया, अपने आसपास के एरिया का सैंपल ले लिया, ज्यादा दूर जाने की बजाय. ठीक है, अपनी कन्वीनियंस देखी, तो वो क्या आ गया, नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग. तो नॉट ऑल पॉपुलेशन मेंबर्स हैव अ चांस ऑफ सिलेक्शन, सो सिलेक्शन डिपेंड्स अपॉन द कन्वीनियंस और जजमेंट. सो कन्वीनियंस सैंपलिंग, पर्पसिव सैंपलिंग, स्नोबॉल सैंपलिंग, ये तीन टाइप्स आ गई हैं इसकी. व्हाट इज कन्वीनियंस सैंपलिंग? कन्वीनियंस जैसे वर्ड से हमें पता चल रहा है. कन्वीनियंस सैंपलिंग का मतलब क्या होता है? वी आर टू सिलेक्टिंग रिस्पोंडेंट्स हु आर इजीली अवेलेबल टू द रिसर्चर, जो हमें इजीली मिल जाए, हमें ज्यादा एफर्ट ना करना पड़े. नो रैंडम सिलेक्शन, it based on ease and accessibility. For example, surveying students present in the classroom today, interviewing people standing near a shopping mall. तो अपनी convenience देखिए. We'll use pilot studies, prelim research when time and sources are limited. तो limitations क्या है इसकी? Results may be biased, नॉट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द होल पॉपुलेशन. अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग हमने कर लिया, बट ये होल पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट नहीं करेगा. सेकेंड वन इज पर्पसिव, और यू कैन से द जजमेंटल सैंपलिंग. अगेन पर्पसिव सैंपलिंग मींस सेलेक्टिंग रिस्पोंडेंट इंटेंशनली. अब इंटेंशनली हमें पता है कि इनको नॉलेज है, ये हमें सही बता देंगे, तो इन्हीं से पूछ लो, बस बाकियों को रहने दो. So because they have specific knowledge or experience related to the study, researcher uses judgment. Participants are chosen for a purpose. Like for example, we are selecting PhD scholars for research methodology feedback. Okay? तो जिनके मार्क्स अच्छे आए हैं, तो हम उन्हीं बच्चों को चूज कर लें, ये अच्छा जवाब दे देंगे. ऐसे ही इंटरव्यूइंग एक्सपीरियंस्ड टीचर्स फॉर करिकुलम स्टडी, चूजिंग कॉस्मोलॉजी रिसर्चर्स फॉर अ ग्रेविटी मॉडल स्टडी. जिनको ज्यादा नॉलेज है वही चूज करें. यूज क्या है इसका, कहाँ पे? फॉर क्वालिटेटिव रिसर्च, केस स्टडीज, एक्सपर्ट ओपिनियन स्टडीज. And limitations क्या है? It is subjective selection. It depends heavily on researchers' judgment. And third one is the snowball sampling. Snowball sampling is a method where one respondent refers other respondent. जो रेफरेंस पे हम काम करते हैं, किसी ने रेफर कर दिया कि ये वाला आप चूज कर लो, तो उसके अकॉर्डिंग चलते हैं. तो एंड द सैंपल साइज ग्रोस लाइक अ स्नोबॉल, तो हम बोलते हैं स्नोबॉल सैंपलिंग. इट इज यूज्ड व्हेन पॉपुलेशन इज हार्ड टू आइडेंटिफाई. हमें समझ नहीं आ रहा कि सैंपल कैसे चूज करें, तो हमने किसी से हेल्प ले ली, तो उन्होंने जो बताया हम उसके अकॉर्डिंग चल पड़े, उनके रेफरेंस के हिसाब से. फॉर एग्जाम्पल, स्टडिंग ड्रग यूजर्स, वेयर
one participant suggests another. Research on rare diseases. Interviewing specialized researchers through references. तो यूज कहाँ है इसका? Is hidden or rare population, sociological and medical research. और limitations क्या हैं? Sample में lack diversity and over representation of similar individuals. Obviously हो सकता है वो same type पे individual जो है ज्यादा आ जाए उसमें, क्योंकि हम रेफरेंस पे चल रहे हैं, खुद से नहीं सोच रहे. सैंपल साइज कैलकुलेशन क्या है? Sample size means number of observations needed, and the correct sample size gives reliable results. So it depends upon the confidence level, error margin, and population variability. Formula simple क्या है इसका? Sample size formula is n is z square sigma square upon e square, where z is the z value, that is 1.96 for just 95% पे. Standard deviation sigma e is the margin of error. ये फॉर्मूला जस्ट मैंने ऐसे दे दिया आपको. फॉर एग्जांपल स्टैंडर्ड डेविएशन इज 10, e is equal to z1 point, तो n नंबर ऑफ टर्म्स, सैंपल साइज 96 आ गया, वो फाइंड कर सकते हैं इससे. तो सैंपल साइज बेस्ड ऑन स्टडी डिजाइन. स्टडी डिजाइन मींस हमें कैसा काम करना है, हमें सर्वे करना है, कोई एक्सपेरिमेंट करना है. ठीक है, तो अगर तो सर्वे स्टडी करनी है तो लार्ज सैंपल यूज करेंगे. एक्सपेरिमेंटल स्टडी करनी है तो मॉडरेट सैंपल यूज करेंगे. पायलट स्टडी करनी है स्मॉल सैंपल यूज करेंगे. It always justify sample size in PhD work. कंक्लूजन क्या यहाँ से आया हमारा? हाइपोथेसिस टेस्टिंग हेल्पिंग डिसीजन मेकिंग. सैम्पलिंग डिजाइन affects accuracy. Proper sample size ensures valid results. Thank you, students. Thank you, ma'am. 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 Hello.